you have come into the PGDBM world in what year? 2026. It is the years of AI models. Last week, you must have heard the US got some Fable and other things like model, but these models are not being approved or made available to Indian companies. Have you seen this news? You seen this news? Do you understand the implication of this news? Yes or no? Okay, I'll explain you. Now there's one model which can do the work of 1,000 people, okay, alone. We Indians will not get access to that model. Somebody sitting in US, now that company was already outsourcing some work to us, is getting access to that model, which means 1,000 job gaye idhar, because we don't have access. They have access. Because they have access, they do not have to outsource that particular thing. And because they do not have to outsource that particular thing, 1,000 लोगों को मुझे रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में. सो अगर मुझे पहले 1 लाख रिक्रूट करने पड़ते थे फ्रेश मैनेजर्स, दैट नंबर विल श्रिंक ड्रास्टिकली, राइट. जो लोग द HR हेड्स, if they are thinking in some archaic mode में चल रहे traditionally, only they will come for placements. The new age managers will not come for placement, take it from me, unless you prove to them that you are worthy of placement. And how do you prove to them that you are worthy of placement? By showing them that you know AI. If you do not know AI, you have no place in corporate world, unfortunately, today, right? I was bogged down by work couple of years back. Today I roam freely most of the time because the work that used to take me a week, I can do that literally in 4 hours today. I can in fact show you that I can set up a marketing strategy for a company. I have my models ready. I just have to input proper commands. It will work in the background. By the time this session is over, it will flush out the marketing strategy for say Fortune 500 companies, for which they used to pay say couple of $1 million to KPMG. I can do that on this small device today. That is the power of AI, right? So it also has immense potential. It will create big values and opportunities for you, but are you ready to tap into those? And like I told you, we were discussing about this batch. We got a feeling that most of you think, हाँ ठीक है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, AI है, तो I'll create something using AI. I'll create something using AI and then I'll become rich. कितना बच्चा ऐसा सोच रहा है? Any one of you thinking like this? सच सच बोल दो, मैं भी इधर का ही प्रोडक्ट हूँ, राइट. सो यू कैन बी फ्रैंक विथ मी, ठीक है. मैं डांट वाट लूँ तो बुरा मत मानना. इट्स बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ. आर ऑल स्पीकर्स अलुमनाई टुडे? ओके, ठीक है. तो जो इधर के उनके साथ तो आप खुल्लम खुल्ला बात कर सकते हो, ठीक है. ये बैठने नहीं देते, ये खाना खाने नहीं देते, ये सोने नहीं देते, ऑल दोज स्क्रिप्ट यू कैन टेल टू मी, ठीक है. सो अगर आप ऐसा सोचते हो, यू आर नॉट रॉन्ग. The problem is with this third cycle. The first circle is what you are deeply passionate about. I am deeply passionate about music. Okay, for example, I can create the best music in the world. वो सचदेव से भी बेहतर. धुरंधर में उसने क्या दिया, उससे डबल गुना, right? But is there anyone ready to buy my music? That third circle is very important. Whatever you are building, does it make sense financially? Does market need your invention? Do you know how many patents are filed in a year? Any idea? What are patents? क्या होता है पेटेंट? नहीं, कॉपीराइट अलग होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है, पेटेंट अलग होता है. कॉमर्स वाले बच्चों यार, ऐसा क्या?
What are Jai Hind sir, patents? my name is Yash Mittal, and patents are basically like a document which clarifies that that type of technology or that concept is booked by a company and no one can use it before without their permission. करेक्ट. अगर मुझे यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर जिनके नाम पे वो पेटेंट है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा. बदले में मुझे कुछ देना भी पड़ेगा ना. हाँ मतलब लाइक पैसे I'll have to रॉयल्टी pay वगैरह. royalty or something like that, right? यस सर. Which means if you invent something, there's a potential that you will earn money through that invention. यस सर. ठीक है. जस्ट ऐसा गूगल पे जाके सर्च करना हाउ मेनी पेटेंट्स कैन बी कमर्शलाइज्ड और गेट कमर्शलाइज्ड, ये जाके घर पे सर्च कर लेना. ठीक है. तो नॉट एवरी इन्वेंशन, नॉट एवरी न्यू थिंग विल क्रिएट डिमांड. एंड इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग डिमांड, चलो मान भी लिया, डिमांड भी कर लिया, बट इफ देयर इज नो वन टू पे फॉर दैट डिमांड. अभी मैं सर से बात कर रहा था कि मैं सबको चांद पे लेके जा सकता हूँ. कितने लोग चलेंगे मेरे साथ चांद पे? चांद देखना है पास से? कुछ लोग तो है, चलो एटलीस्ट फाइट. अरे परफेक्ट. 20-30% मार्केट शेयर है सर ये आइडिया का, बट 400 करोड़ लगेंगे हर एक का. कौन चलेगा अब? तो आइडिया में पोटेंशियल है बट मार्केट वायबिलिटी नहीं है. ठीक है. तो आइडिया फेल है. समय से बहुत पहले है तो भी गलत है, समय से बहुत बाद है तो भी गलत है. राइट. एंड मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, अच्छा उसने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ना मुझे सीजनड क्या एंटरप्रेन्योर बोला. जनरली आई डो नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, बट अभी मैं वो ले रहा हूँ. थैंक यू. Because it is very important for you to know that there are 4-5 ventures that I started and I failed miserably, right? Because मैंने लोगों पे भरोसा किया. One such interesting venture was Builder Buddy. You will be surprised to know that big high-rise building that come up, उसका planning कैसे होता है? Excel sheets पे. They have got Beam. Beam is उनका सॉफ्टवेयर है, उनका ERP बोल लो तुम, कंस्ट्रक्शन वालों का. They have purchased that, they have procured that, but that particular Beam software is sitting in their office. साइट पे क्या चल रहा है किसी को आइडिया नहीं है. ठीक है. बिल्डर जो था 10 साल पहले साइकिल पे चाहता था, 7 साल पहले वो 2 व्हीलर पे आया, 5 साल पहले कार पे आया, अभी वो शायद पोर्शे पे घूम रहा है. बट उसको बोलो यार तेरा प्रॉफिटेबिलिटी एग्जैक्टली कितना है बता. ही हैव नो क्लू. ठीक है. एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन स्प्रेडशीट. So my hypothesis was very simple. If I create a very user-friendly ERP for you, जैसे कि आपको exactly पता चले कौन सा रॉ मटेरियल कौन से साइट पे कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, कितने दिन से पड़ा है, उसको आप कैसे कंज्यूम कर सकते हो. विल यू बी रेडी टू इन्वेस्ट इन टू दिस? इन्वेस्ट इज एन लाइक बाय इट ऑन अ सब्सक्रिप्शन विच इज ओनली 5,000 rupees a month. Every single builder told me yes, we needed it. मैं यार मैंने मैनेजर से सुपरवाइजर से पूछ के परेशान हूँ कि क्या है सीन प्रोडक्शन का, क्या बिल्डिंग कौन सी कंप्लीट है कौन सी नहीं है. राइट. मैंने बनाना चालू कर दिया. टीम ऑफ 10 डेवलपर्स वर्किंग डे एंड नाइट. आई एम बर्निंग मनी लाइक एनीथिंग. ठीक है. बना. मैं उनके पास गया. कितने लोगों ने खरीदा होगा? एनी गेसेस? सब मार्केट सर्वे, एवरीबडी नीडेड इट. 5,000. अरे अभी ले पैसे. ठीक है. क्योंकि प्रोडक्ट रेडी नहीं था. व्हेन द प्रोडक्ट वाज रेडी आई वेंट बैक टू दोस पीपल. हाउ मेनी बॉट इट? गेस. 10, 1, 15. ओके. 1 इज वेरी क्लोज. 3. इतना कि मेरा क्लाउड कॉस्ट भी सस्टेन नहीं कर पा रहा. आई हैड टू शट दैट. ठीक है. बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मार्केट सर्वे किया, इतने लोगों को चाहिए, चलेगा ही चलेगा. बट मैं कहाँ फेल हुआ? इकोनॉमिक इंजन. राइट. सो समटाइम्स रिमेंबर पीपल विल लाई. ठीक है. तो आप जब अपने दोस्तों से बात करते हो ये आइडिया है धासु, करेंगे काम? हाँ 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 करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. यू आर लाइक न्यू फ्रेंड ना. कौन किसी का दिल दुखाना नहीं चाह रहा है अभी. जो भी बोले मुझे फ्रेंड चाहिए भाई, मुझे अकेले नहीं रहना है. Right? So I'll say whatever you want to hear. In that you will say, मैं तो राजा हूँ, मेरे को सब आता है. अब मुझे सिर्फ यहाँ से डिग्री चाहिए, प्लेसमेंट की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है. Why? Because you hear news. News of what? इसको $3 मिलियन का फंडिंग मिल गया, उसको $10 मिलियन का फंडिंग मिल गया.
एंड घर जले उस शार्क टैंक का। मेरे बच्चे भी बात करते हैं अभी कि बाबा ये फंडिंग ले लेते हैं ना, ये आइडिया धांसू है। यू थिंक फंडिंग इज सो ईजी कि मुझे क्या करना है, मुझे एक शार्क टैंक को लेटर लिखना है, वो बोले ओ आप ही का तो वेट कर रहे हैं, आ जाओ, ठीक है। फिर मुझे जाना है, 3 मिनट की एक स्पीच रटनी है, फिर वो बोलेंगे अच्छा कितना चाहिए, 1% के लिए 1 करोड़, चलो दे दिया। ऐसा लगा किसी को होगा? सपनों में आया कभी कि ऐसा कुछ करेंगे? क्या बच्चे हो यार, फिर अब तो क्या करोगे, तुमको नौकरी बन के रहना है? किसी के तो दिमाग में आया होगा, किसी के नहीं। नो वन, सीरियसली क्या बच्चे लाए सर? नोबडी वांट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर। अच्छा किसी को तो करना है लेकिन फंडिंग नहीं लेनी है। देन कब? ओह इंटरेस्टिंग। ये जो नीली दंडी दिख रही है यहाँ से, जो नीली से ऑरेंज होते जा रही है, इधर के साइड पे क्या और इधर के साइड पे क्या है? बटरफ्लाई, राइट। जस्ट टू पुट यू इन कॉन्टेक्स्ट, ये पिछला जमाना होता, ठीक है, ठीक है, पिछला जमाना होता। ये जो छोटू सा इधर कैटरपिलर टाइप्स कुछ है, ये मेरे पिताजी है समझो, ठीक है, ये वाले। और ये बुढ़े पिताजी अभी, ठीक है, 75-78 एज के। यहाँ से यहाँ की जर्नी में उन्होंने क्या हासिल किया? 2 बच्चों को पढ़ाया, एक घर बनाया, ठीक है। कितना टाइम लग गया? 75, ठीक है। माई एज इज 45, राइट। 2 घर, 2 गाड़ी, 2 बच्चे, 2-3 सेटअप्स, राइट। कितना टाइम लगा? 45, सेम जर्नी, राइट, डिस्टेंस सेम। आपके बैच को कितना टाइम लगना है पता है? हार्डली 5 years फ्रॉम नाउ। 1-2 घर हो जाएंगे आपके अगर आपने ढंग का काम किया तो, ठीक है। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये जो जर्नी है, द ड्यूरेशन इज श्रिंकिंग विथ एवरी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो अगर तुमको अब एंटरप्रेन्योर बनने का नहीं सोच रहे हो ना, तो इट्स ऑलरेडी लेट। अभी से बनने की कोशिश करो, तब तो कहीं जाके 5 साल में बन जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होना, राइट। मेरे लाइफ का सिली डिसीजन जिसके लिए मुझे बहुत कोसा गया, बट आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। मर्सिडीज़ में था, मैं यहाँ से गया था वेयर हाउस में, एक जॉब मिलने वाली थी मर्सिडीज़ में, नॉट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट बट बिकॉज सीनियर्स टू मी डिडंट वांट टू मूव टू चंद्रपुर। चंद्रपुर नाम कितने लोगों ने सुना? यहाँ माओवाद, नक्सलवाद, ऐसे जो भी वाद है, यहाँ पे नक्सलवाद है वो चंद्रपुर साइड पे होता है, ठीक है। सो नोबडी वांट्स टू गो देयर, बट मर्सिडीज वाज लॉन्चिंग ट्रक, एक्ट्रॉस एक नाम का ट्रक है, दे लॉन्च दैट, एंड इट वाज माइनिंग ट्रक। जो सामने दौड़ा उसको तो 100 की स्पीड में दौड़ सकता है, रिवर्स में 50 के स्पीड में दौड़ सकता है, वाइल इट इज कैरिंग 50 टन ऑफ वेट, ओके, इतना कैपेबल ट्रक है। बट ये माइनिंग का ट्रक है, तो वेयर इट मेक सेंस टू सेट अप दी वेयर हाउस? सिटी में, यहाँ माइंस है, चंद्रपुर साइड पे काफ़ी कोल माइंस है, तो उन्होंने उसका वहाँ पे सेटअप किया था। एंड देन दे आस्क्ड हु वांट टू गो देयर। तो हमारे शेवड़े सर रिटायर होने वाले थे नेक्स्ट ईयर, उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जा रहा। फिर जो नेक्स्ट 2 थे, किसी की 10वीं थी, किसी की बेटी की शादी थी, कुछ तो था, तो दे ऑल्सो डिक्लाइन। सो सीनियोरिटी में मैं आया, बोले कि आप जाओ वहाँ पे, 1.5 लाख का सैलरी देंगे, जो चाहो वो देंगे, गाड़ी बंगला घर सब देंगे। दिस वॉज वॉट 2005-6, ओके। मैंने क्या किया होगा? आप क्या करते? चलो मैंने क्या क्या छोड़ दो, आप क्या करते? हाँ, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते। मैं गधा था, मुझे ये नहीं करना। मैं वेयर हाउस में 6 महीना में बोर हो गया हूँ, कंप्यूटर के साथ मेरा इंटरेक्शन ही नहीं है, सिर्फ 3 बार मुझे कंप्यूटर छूने को मिलता है दिन में वहाँ पे, वो भी 3 कमांड डालने के लिए। SAP वाले जो बच्चे हैं ना, उनसे पूछ लेना, सिर्फ कमांड डालनी पड़ती है, VL02, MB05, VL05, दिन में बस यही करना है, बाकी कंप्यूटर को देखना भी नहीं है। गॉट इट? तो मैंने बोला वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको मारी लात, मैंने ज्वाइन की एक छोटी सी कंपनी जहाँ पे मेरी सैलरी थी 8,000। क्या बोलोगे आप? मतलब यार मैं इससे क्यों लेक्चर सुन रहा हूँ, है ना। मेरे घर वालों ने यही बोला, मेरे दोस्तों ने भी यही बोला, एंड बिकॉज
they were wanting good for me, है ना. But I think that was the best decision of my life, क्योंकि वेयर हाउस वॉज नॉट माई, कहाँ गया ये, वेयर हाउस वॉज नॉट माई पैशन. ठीक है. सॉरी. हाँ. बट आई एम हैप्पी, क्योंकि उसके बाद जो मुझे करने को मिला उसके मल्टीफोल्ड मुझे रिटर्न्स बाद में आए बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन. ओके. आई वॉज लकी टू हैव दिस क्लैरिटी. डू यू हैव दिस क्लैरिटी कि आपको क्या करना है? डू यू हैव इट? सबको पता है? मतलब आप ये पक्का करोगे कि मैं अगर 2 लाख का जॉब आपको ऑफर करता हूँ आज, तो आप बोलोगे नहीं ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, भले उसके पैसे ना मिले. हाउ मेनी आर रेडी टू डू दैट? नॉट बिकॉज आपके घर में बहुत पैसा है. मैंने बताया तुमको, यहाँ से यहाँ मेरे फादर को बहुत टाइम लग गया. ये नहीं कि मैं आई वॉज सिटिंग ऑन लाइक पाइल ऑफ कैश, ये नहीं था. श्योर हो? कितना एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो आप इस चीज के लिए? आपका दिन कैसे शुरू होता है? कैन समबडी टेल मी देयर डे, अ टिपिकल डे? कितने बजे उठते हो, क्या करते हो? Jai Hind sir, my name is Manya Mishrikar. I wake up at 6:30, brush, and then these two people live with me right now. So they wake up, I talk to them, and then I get ready, and then I come to the college. Okay. And I'm Study here. here, go back. What time? 6:30ish something. Okay. After that, what do you do? Assignments, and then dinner, and then talking to them, and all of the things that we have learned in the lecture. We just go through them again, and then sleep. बिकॉज यू स्ट्रेस्ड. अच्छा ठीक है, असाइनमेंट कर लिया, कुछ नया किया, कुछ नया पढ़ा? In yesterday's lecture, they told us to do like know more about the industries that we want to go in. So I looked more into it. सो हाउ मच टाइम यू गिव फॉर दिस एक्टिविटी? कितना साइड में रखा है, पोर्शन किया है फॉर न्यू थिंग्स? Till I fall asleep. नहीं किया ना? No, I did look into it, but till I fall asleep, half an hour, 1 hour. हाँ ठीक है. टाइम अलोकेट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिख दिया कि 2 घंटा में न्यूज़पेपर पढ़ूंगी और फिर पढ़ना ही नहीं है, मैं सो गई. उसको कोई मतलब नहीं है. जो प्लान किया और एग्जीक्यूट कर रहे वो कितना है? Half an hour. Half an hour? You are studying new things, half an hour, which are not part of your curriculum syllabus, right? No. And they are not fiction things like novel. No. है ना? नया, गुड. और कोई आधे घंटे को बीट करने वाला जो कुछ नया पढ़ रहा है? नहीं? ओके. आई माइट बी प्रोनाउंसिंग दिस नेम नॉट करेक्टली. फॉसबरी जंप कितने लोगों को पता है? इट्स अ हाई जंप थिंग. बार होता है ऐसा ओलंपिक में, ऐसा बंदा दौड़ के आता है, ऐसा जंप करता है. ये पता है ये गेम? ओके, हाई जंप. ओके. फॉसबरी नाम का एक बंदा था, हु वाज बायोमैकेनिक इंजीनियर, ऐसा कुछ. तो ही वाज नॉट इवन एथलीट. ओके. तो ये बंदा था. इसके टाइम तक लोग जंप कैसा करते थे? दे यूज्ड टू कम, इफ दिस इज अ बार, दे यूज्ड टू हैव वन लेग गोइंग फर्स्ट और फिर दूसरा पैर डालते थे. पीठ केबल. ओके. ऐसे जंप करके आ रहे हैं, मतलब ऐसे जंप कर रहे हैं. बेसिक फिजिक्स कितनों पता? सीजी कितनों को पता? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर मुझे गाड़ी डिजाइन करनी है, ठीक है, 300 किलो की मेरी गाड़ी है, ठीक है, से 650 है, अपनी 2 व्हीलर डिजाइन करनी है,
तो मुझे जब देखना है कि यार इसका स्टेबिलिटी कैसे रहेगा, आई कैनॉट हैव लाइक द फुल व्हीकल फॉर इजी कैलकुलेशन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ 300 किलो वेट एक पॉइंट पे अगर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया तो वो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। वो जितना ज़मीन के पास होगा उतनी गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी होगी. दैट इज द रीजन सेडान्स आर वेरी स्टेबल, वेर एज व्हीकल्स लाइक थार दे हैव बॉडी रोल प्रॉब्लम. आप ऐसा टर्न करोगे तो आपको लगे ओ ओ ओ ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट. तो ये बायोमैकेनिक वाला बंदा था, ये बोला कि अरे यार अगर बॉडी की सीजी में नीचे ला पाऊँ तो आई कैन टेक हायर जंप. ठीक है, तो ये चौड़ में उसने ओलंपिक में रजिस्टर कर लिया खुद को, और उसकी कंट्री से शायद कोई था भी नहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन, तो ही कुड रीच ओलंपिक लेवल. अब उधर ओलंपिक का इनॉग्रेशन चल रहा है, ये बंदा गाड़ी में सो रहा है. ठीक है, एवरीबडी हैज डिस्कार्डेड दिस गाय कि ये तो एथलीट भी नहीं है. ठीक है, कैसे तैसे आ गया क्या, और सो भी रहा है. व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज. फिर वो दिन आया जब उसको जंप लगानी थी. वो आया, उसने पैर खुला किया, रोल किया, उधर गया, सिर्फ पीठ के बजाय, सॉरी, एवरीबडी वाज रोलिंग ऑन स्टमक, ही रोल्ड ऑन बैक, जिसकी वजह से उसका बॉडी का सीजी कम रहा, एंड ही वन द गोल्ड मेडल इन हाई जंप दैट पर्टिकुलर ईयर. एंड फिर वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गया, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी वो गोल्ड मेडल लेके जा रहा है. सब ने पूछा उसको, रिपोर्टर कि ओके अगले साल के लिए आपका क्या प्लान है. बोला अगले साल मैं नहीं आ रहा. वाई? नहीं, गोल्ड मेडल क्या 2 बार नहीं चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए सबको. क्यों नहीं बोला वो कि अगली बार आना है. Yes, he said now everyone knows a new technique. They know they'll beat me. There's no point coming next year. I wanted to prove one thing, which I did. ठीक है, अब ये एग्जैक्टली हो रहा है टेक्नोलॉजी की पेस में कि एक कंपनी ने कुछ नया बना दिया तो 5-6 दिन है सब बनाएंगे. एप्पल ने कुछ नया किया, शाओमी छापी देगा. शाओमी ने छापा, अपना बोर्ड छापी देगा उसके बाद. ठीक है, इसमें इस स्ट्रैटेजी में कुछ बुरा नहीं है, बट वंस यू गेट सेटल्ड एज लाइक कॉपी कैट, फिर बोट को ना प्रीमियम हेडफोन बेचने में दिक्कत जा रही है, क्योंकि वो जो पहले वाले हैं वो चाइना से इम्पोर्टेड है, थोड़ा बहुत टुक टुक कर लिया तो उससे आप मार्केट नहीं कैप्चर कर पा रहे हो. ठीक है, तो इनफ ऑफ ब्लैबरिंग, लेट्स मूव इनटू द टॉपिक. या ब्लैबरिंग अच्छा लग रहा है? अभी तो हमने मतलब गई नहीं टॉपिक में. ये तो सर ने बोला कि एक बार बात कर लो बच्चों से, बड़े बड़े हवाई आसमानी ख्याली पुलाव है इनके, घूम रहे हैं, थोड़ा ज़मीन पे लो. आ गए ज़मीन पे? ठीक है, ऐप बना के बेचना इजी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, इजी नहीं है. गॉट इट? किधर पॉइंट करना है क्या इसको? ऐसे इतना पास आ गया? अरे मैं ही बोलता हूँ, आप कर लो. हाँ, वाई AI मैटर्स फॉर MBA स्टूडेंट्स. 3 मेजर पॉइंट है. पहला क्या है? शिफ्ट इन ऑपरेशंस. अब हम जब गए यहाँ से पढ़ के, हमारा पहला काम क्या था? जाओ डेटा कलेक्ट करके लाओ, जाओ एक रिपोर्ट बनाओ. ठीक है, 2-3 साल हमने यही किया. अब इसकी एब्सोल्यूट जरूरत नहीं है. Nobody needs your report. Nobody need you to go run around and get data. Why? Because I have system for it. तो अब डायरेक्टली मुझे क्या चाहिए? ये पूरा रिपोर्ट है भाई, अपने पूरा पिछले 10 साल का प्रोडक्शन का शीट है. क्या कर सकते हो इस रिपोर्ट से? बताओ मुझे. Unfortunately, the current syllabus is not equipping you for this kind of scenarios. क्योंकि यूनिवर्सिटी को नहीं पता मैं क्या सिखाऊं बच्चों को ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए. बच्चों को छोड़ो, हमें कॉर्पोरेट में नहीं पता अभी कि क्या करना है, बिकॉज जो काम कर रहे थे वो इररिलेवेंट है. आई एम वेरी प्राउड टू से कि 1 साल 2 साल में मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा. वॉट एवर आई डू एंड अर्न मनी, देल बी AI मॉडल फॉर दैट विच विल डू इट एट $20 पर मंथ. अब जिस $20 मुझे लाखों कौन देगा उस चीज़ के? ठीक है, सैड पार्ट, बट नाउ आई ऑलरेडी स्टार्टेड कि मैं जो भी नया आएगा आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट.
बट व्हाट अबाउट यू? ये तो पहले स्टेप में फेल हो जाओगे आप। 4 Ps कुछ हुआ है सेशन मार्केटिंग के आपके चालू हो गए? नो ये फ्रेश सिर्फ इंडक्शन चालू है। चलो एंजॉय कर लो इसको, इसके बाद का और थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, क्योंकि जो तुम सीखोगे तुम्हें ये तो बहुत फुद्दू है, इसके लिए मुझे क्यों क्लास में बिठाया। प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन, जो कि बीबीए से आए हैं शायद उनको पता हो, या जो कॉमर्स से आए हैं उनको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह क्या है, मतलब बेसिक सी चीज़, इसके लिए क्यों बिठाया। तो उसके लिए बैठो भी मत क्लास में। तुम्हारा लिटरली 50-60% ऑफ द एफर्ट शुड गो इनटू रीडिंग न्यू थिंग्स। एचबीआर की रिपोर्ट लो, लाइब्रेरी का एक्सेस है आप लोगों को, राइट? वहाँ पे जाके पढ़ लो। दैट विल प्रिपेयर यू फॉर द वर्ल्ड दैट नीड दिस काइंड ऑफ पीपल। नॉर्मल आओगे, नॉर्मल जाओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। वन फंडामेंटल प्रॉब्लम विथ आवर एजुकेशन सिस्टम इज, मैं पहली पास होता हूँ तो मुझे पता है दूसरे में जाना है, दूसरे पास होता हूँ तीसरे में जाना है, राइट? माई पाथ इज सेट। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं है, वहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करना है साइंस आर्ट्स कॉमर्स, वो एक बार सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ग्रेजुएशन भी सेट है। एमबीए के बाद क्या है ना, ये पता ही नहीं है। तुमको पता है एग्जैक्टली कौन सी कंपनी में तुम प्लेस होने वाले हो? तो मेरा पाथ सेट नहीं है, तो तुम सिलेबस के भरोसे पे मत रहो, वो सेट है। दैट इज नॉट डायनामिक, यू आर गेटिंग इनटू अ डायनामिक वर्ल्ड, राइट? वहाँ का कोई सिलेबस नहीं है। अगर आप दो अलग अलग लोग सेम इंडस्ट्री में भी गए तो काम कंप्लीटली अलग होगा। आई गॉट इनटू से आईटी मार्केटिंग, मेरा अलग था फील्ड, कोई दूसरे बंदे का अलग होगा। इवन इन लाइक से आईटी मार्केटिंग, we were more focused on digital tools, somebody was more focusing on say event participation, the other guy was more focusing on trade shows। सबका अलग अलग जर्नी होगा। आप कितना खुद को एक्सपोज करते हो ये 2 साल में, ये कवर मिला है आपको, प्लीज़ यूटिलाइज इट। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो, और जितना ज़्यादा खुद को अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सिनारियोज में एक्सपोज कर सकते हो कर लो। सेकेंड इज कॉग्निटिव प्रीमियम। वैल्यू शिफ्ट्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टू कॉन्सेप्चुअल सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। पहले ना हमें नोट्स के लिए, मुझे याद है मेरे बचपन में, अरे तुम्हारे पास अच्छे नोट्स है क्या, तुम्हारे पास अच्छे नोट्स है क्या, हम भागते थे। आधा टाइम तो हमारा भागने में चला जाता था, फिर आधा टाइम पढ़ाई करते थे। फॉर यू द प्रॉब्लम इज, इफ यू गो टू इंटरनेट एंड लुक फॉर से मार्केटिंग नोट्स, इतना बड़ा लिस्ट है, राइट? अब आपको क्या करना है, मतलब प्रॉब्ली यू मस्ट हैव गॉन इनटू इट, कि सब डाउनलोड कर लो, एक खोल के देखो, स्कैन कर लो, बंद कर लो, दूसरा खोल के देखो, स्कैन कर लो, एंड देन डिसाइड कि अच्छा ये 10 नोट्स में से कौन सा नोट ज्यादा अच्छा है। आपका प्रॉब्लम इज नॉट लाइक रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, आपका प्रॉब्लम इज आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हाट डू एग्जैक्टली रीड। ये हुआ है आपके साथ, राइट? मैं कुछ ढूंढने जाता हूँ, अरे 10 ऑप्शन है यार उधर, है ना? आज कौन सा मूवी देखूँ, चलो कोई थ्रिलर देख लेते हैं, अरे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एक तो ये हो रहा है, नहीं तो यार कुछ भी देखने लायक नहीं है, ये हो रहा है, राइट? बट ऑप्शंस आर मेनी, दैट इज द सेकेंड। थर्ड इज द ऑर्केस्ट्रेटर मैंडेट। ठीक है, व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेटर मैंडेट? अभी हमको लगता है कि हाँ मैं जाऊँगा, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मुझे कोई बोलेगा कि ये हमारी रिपोर्ट है, इससे कुछ बनाओ, तो आपके दिमाग में हाँ अभी तो ChatGPT है, ये रिपोर्ट लेना है, अपलोड करना है, जो भी बॉस ने बोला वो प्रॉम्प्ट डालना है कि ओके टेल मी विच प्रोडक्ट गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर मी इन लास्ट 5 ईयर, वो पढ़ के दे देगा, राइट? तो तुम्हारा बॉस ही नहीं है ना, अगर वो एक लाइन का कोड डालना है तो वो भी डाल सकता है। वो जो तुमको दे रहा है वो प्रॉम्प्टिंग के लिए नहीं दे रहा है, इट इज गिविंग यू दैट रिपोर्ट और दैट पर्टिकुलर वर्क टू मैनेज द सिस्टम, टू ट्रेन टू मैनेज द सिस्टम। सो अभी क्लॉड नाम का AI पता है किसी को? अच्छा, सबको पता है। हम कोडिंग में इट इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज ओवर अदर AI मॉडल्स, ऐसे नहीं बाकी नहीं है, बट दिस वन इज मोर पॉपुलर। तो क्लॉड का खुद का कहना है, डू नॉट यूज क्लॉड फॉर प्रॉम्प्टिंग, यूज क्लॉड फॉर बिल्डिंग सिस्टम दैट विल प्रॉम्प्ट इटसेल्फ। फर्क समझ रहे हो? कि आपको प्रॉम्प्ट करना इज नॉट द फ्यूचर, राइट? IT में तो टुडे है, प्रॉम्प्टिंग इज समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू,
you are supposed to build a system which will prompt itself and give you output. For example, I want to build a CRM. तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्निकल थोड़ा चलेगा, मैं डिफरेंट एजेंट स्पिन करता हूँ. डिफरेंट एजेंट स्पिन कर रहा हूँ मतलब स्पेशलाइज मॉडल जो है मैं बना रहा हूँ, एंड एवरी मॉडल विल हैव अ डिफरेंट टास्क. दैट मॉडल इज भगवान पता है अपने को, हिंदू हनुमान जी है. क्या करते हैं हनुमान जी? किस चीज़ के देवता है? शक्ति के. तो वो शक्ति के एजेंट हुए. ठीक है. सरस्वती किस चीज़ के देवता है? हाँ, तो सरस्वती देवी जो अपनी एजेंट है विद्या की. ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं. ठीक है. वन एजेंट विल आर्किटेक्ट द सिस्टम, वन एजेंट विल कोड द सिस्टम, वन एजेंट विल टेस्ट द सिस्टम, वन एजेंट विल डू समथिंग एल्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखेगा. ऐसे सब एजेंट है. यू आर सपोज टू क्रिएट दिस एजेंट एंड टेल देम व्हाट दे शुड बी डूइंग. अच्छा पहले बेटा तू रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर, क्लाइंट को जा, सर्वे बना, उससे फीडबैक ले, फिर बीए के साथ डिस्कस कर. ये मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये एजेंट एक साथ कर रहे हैं अभी. आई नीड टू क्रिएट दिस सिस्टम. ठीक है. सो दिस इज वॉट यू आर सपोज टू डू एंड यू विल बी पेड फॉर दिस, नॉट फॉर प्रॉम्प्टिंग. प्रॉम्प्टिंग तो बच्चे कर रहे हैं अभी. ठीक है. नेक्स्ट. सो दिस इज अ हाइप साइकिल. जैसे .com बूम, ये वर्ड किसने पढ़ा है? .com बूम नहीं, साल था 2000. ठीक है. आप बोलो मुझे साइट बनाना आती है, तो लोग पूछेंगे कितना पैसा चाहिए. ये ले $1 मिलियन, $10 मिलियन. आई एम नॉट जोकिंग, जो कि लिटरली फुद्दू सी चीज़ है. इंडिया में तो ये हालत थी कि आपका ग्रेजुएशन क्या है कोई नहीं पूछ रहा. वो बोल रहे कि आपके पास उंगलियां है. क्या आपको टाइपिंग करना आता है? यस, आ जाओ आईटी में. दैट वाज अ डिमांड, राइट. इतना था वो .com बूम. अब वही बूम जो है वो एआई के लिए. एंड एज एन इन्वेस्टर आई एम इन्वेस्टिंग इनटू 1000 थिंग्स. ओके. मुझे पता है 1000 में से 900 सक्सेसफुल नहीं होंगी, ओनली 100 विल सक्सेस एंड दोज विल गिव मी लाइक ट्रिमेंडस रिटर्न. सो आई एम इन्वेस्टिंग. बट अभी ये गेम इज डाइंग डाउन. ना यू विल सी रिपोर्ट, मतलब आप इंटरनेट पे जाओगे तो एआई वेव इज फेडिंग, एआई बूम इज डाइंग, एआई बबल इज बस्टिंग. ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी एंड दैट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज मॉडल्स आर मैच्योरिंग. अभी वो एक्सपेरिमेंटेशन मोड में नहीं रहे हैं. आई वॉज टॉकिंग टू वन फाइनेंस इन्वेस्टर yesterday, just yesterday at his office. He told me कि जो अभी इंडिया का स्पेस टेक है, इट इज़ मोस्टली लाइक नासा से एक फीड लेते हैं, दे पे नासा अ सर्टन फी, सर्टन सब्सक्रिप्शन ऑफ मंथ. नासा उनको डेटा देता है, फिर वही क्लाइमेट का डेटा ये वो सब करके वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है इतना रेन गिरेगा, इतना ये होगा वो होगा. ऑल मोस्टली स्टार्टअप्स आर लाइक दिस कि कहीं से एक डेटा सोर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना कुछ मॉडल बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं. बट मार्केट में इतने सारे मॉडल्स के और इतने सारे स्टार्टअप्स की जगह नहीं है, राइट. आई डोंट हु इज सेइंग इज दिस, दैट मार्केट हैज स्पेस फॉर ओनली 3 players. इवेंचुअली ओनली 3 विल रूल द वर्ल्ड. कोई भी आप सस्टेन मार्केट ले लो, कार का लेते हैं फॉर एग्जांपल. कौन है 3 टॉप प्लेयर्स इंडिया में? मारुति, टाटा, महिंद्रा. दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर. फिर है अपने निसान वगैरह छोटे छोटे हैं, बट दे आर नॉट द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ द मार्केट, राइट. सो मार्केट विल हैव पोजिशन ओनली फॉर 3. देयर कुड बी सम एनोमली समवेयर, बट दिस इज द थंब रूल. ठीक है. तो अभी ये हाइप साइकिल है. नाउ कंपनीज आर गोइंग टूवर्ड्स द रियल implementation of the things. Then enterprise utility. Real world value is found in mundane workflows rather than sentient chats. ऐसा फैंसी चैटबॉट्स ये वो सब बनाना, मतलब हो गया वो सब एक्सपेरिमेंट करके हो गया, कंपनी को नुकसान भी हो गया. दिस वन इंटरेस्टिंग केस इन यूके. एक बंदा था, ओके, व्हाट आर चैटबॉट्स ट्रेंड फॉर? चैटबॉट यूज़ किया कभी? आप चैट जीपीटी में जाना और बोलना 2+2 कितना होता है? 4. अभी शायद वो ठीक कर दिया उन्होंने बिकॉज इट वॉज वेरी पॉपुलर थिंग. आप उसको बोलो नहीं 5 होता है, बोले ओ सॉरी सर 5 होता है. why is ChatGPT or any other LLM doing that? They are trained to obey you. They are trained to follow your orders. Okay. ऐसे ही थे
वो यूके की एक कार कंपनी थी, उन्होंने जोश जोश में लगा लिया कि हाँ ठीक है, विल ऑल्सो पोर्ट्रे दैट वी आर, या मस्त कंपनी है, चैट बॉट लगा दिया। एक बंदा गया, उसने बोला कि ओके आई वांट टू बाय योर कार, विच मॉडल, सो एंड सो मॉडल, व्हाट इज द कॉस्ट, से 30 pound 30,000 pound फॉर एग्जाम्पल। उसमें नो, इन वन ऑफ द ब्रोशर आई सॉ दैट यू आर सेलिंग इट फॉर £1। बॉट ने क्या बोला, oh sir, that could be the thing, okay, so now you agree it is for £1, yes, book a car for me, here's my credit card detail, £1 चला गया, कार बुक हो गई। कंपनी ने क्या किया, दिया होगा नहीं, कंपनी वेंट टू कोर्ट ऑब्वियसली, लेकिन कोर्ट ने बोला सी द चैटबॉट वाज एक्टिंग ऑन योर बिहाफ, इट मेड प्रॉमिस ऑफ सेल ऑन योर बिहाफ, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व इट। ऐसे वॉलमार्ट का भी हुआ है, आई थिंक अमेजोन का भी कभी कभी हुआ है कि कुछ तो कोई एड़ा इंजीनियर रहेगा, उसने 6 जगह 5% के डिस्काउंट की जगह 50 कर दिया, और उनको सारा ऑब्जर्व करना पड़ा वो सारे कमिटमेंट्स, ठीक है। सो अब वो फैंसी टाइम चला गया, चैटबॉट भी मैच्योर हो चुके हैं, अभी उल्लू बनाना बहुत मुश्किल है, दे आर अ गार्ड रेल्स, राइट, दे विल से द मोमेंट यू गेट इनटू कमर्शियल डिस्कशंस, फॉरवर्ड दिस चैट टू अ रियल पर्सन, रियल सेल्स पर्सन, ये हो रहा है। तो अभी मंडेन वर्कफ्लो जो है, मंडेन व्हाई कंपनीज आर प्रॉब्ली फोकसिंग ऑन मंडेन वर्कफ्लोज, एनी गेसेस इफ यू वांट टू मेक? मंडेन वर्कफ्लो कॉलेज का क्या होगा कि हाँ ये सर लोग मैडम लोगों का शेड्यूल बनाना है कि कौन किस क्लास पे जाएगा, क्या सिखाएगा, ये मंडेन है, एवरी ईयर दे हैव टू डू इट, राइट। इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं? एनी गेसेस? My name is Rohan. Hi, Ron. Sir, by doing mundane works, it in future creates management level talent. That's why. नहीं वो तो चैटबॉट को मतलब एआई को क्यों दूंगा मैं? अगर मैनेजमेंट लेवल थिंकिंग ही डेवलप करनी है तो मैं इंटर्न को दूंगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होता है? ट्रायंगल। कोई कंपनी देखिए जहाँ पे 100 सीईओ है और 2 इंटर्न है, राइट, ऊपर में कम होते हैं, नीचे ज़्यादा होते हैं। आपको क्या लगता है सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे होगा? नीचे से ऊपर जाते हुए सैलरी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। हफ्ते में आवर्स कितने होते हैं? सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले की सैलरी तुम पकड़ लो से 50 लाख और इंटर्न की पकड़ लो सैलरी, कितना पकड़े इंटर्न की सैलरी? तुमको इतना ही मिलेगा, याद रखना, ठीक है। कितना पकड़े? 25,000, चलो 25,000। अब एक मंडन टास्क जो है, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये अलोकेशन का काम कौन कर रहा होगा फैकल्टी के? कोई सीनियर कर रहा होगा, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में कोई कर रहा होगा, राइट। अब वो बंदे का टाइम में फ्री कर दूं तो ये अच्छा मूव है कि बुरा मूव है? अच्छा मूव है, राइट। और इसमें कोई वैल्यूएशन भी नहीं है। अब मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 3 मैं मंडे को पढ़ा हूँ या ट्यूसडे को पढ़ा हूँ या फ्राइडे को पढ़ा हूँ, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, ठीक है। सो लो इंटेंसिटी, हाई टाइम कंज्यूमिंग, बट किसका टाइम जा रहा है? बहुत सीनियर लोगों का टाइम जा रहा है। उसको अगर कोई ऑटोमेट कर सकता है एआई वाला तो उसकी चांदी, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट कि सीईओ के डिसीजन कौन से हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हो क्या? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम if I see historically, when this was the situation, she has taken this decision. If this was the situation, she has taken this decision. So it is, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे वेरिएशन नहीं दिख रहा है, तो आई विल ऑटोमेट इट, ठीक है। मेरे पास जब रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ऑर्डर्स बुक या ऑर्डर्स ऑन हैंड मेरे पास है, तो मुझे सिर्फ ऑपरेशन वाला आके मेरे पास, सर मैं आज ये बनाऊँ क्या? तो मैं क्या बोलूँगा उसको? मत बना, जाने दे ऑर्डर। होगा ऐसे? If I can automate that, I'll automate that. I'll maybe have human in the loop. I'll have my CEO just review it. Okay, ठीक है, ठीक लग रहा है, okay, go. ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पैसे, enterprise utility. And third is pragmatic execution, shifting corporate focus from cool demos to measurable return on investment. Cool demo का टाइम गया कि ऐसा 3D में आ रहा है, कोई बता रहा है, पैसा कहाँ है उसमें?
ठीक है, थोड़ा सा मीडिया हाइप मिल जाएगा, बट पैसा है तो वैल्यू है। अभी फीफा चल रहा है ना, आई सॉ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ एडवर्टाइजिंग के बोर्ड होते हैं ग्राउंड में, देखा होगा, जैसे क्रिकेट में बाउंड्री के बाहर जो बोर्ड होते हैं, अब फीफा इज सीन इन मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है। इट मे हैपन दैट अ कंपनी विच इज स्पॉन्सरिंग फीफा फॉर say telecast right in a particular country do not have product to sell in that country। जैसे अभी तक चेरी की गाड़ियाँ इंडिया में नहीं है, चाइनीज़ कंपनी है, चाइना में कोई फीफा देख रहा है तो चेरी वांट टू शो देम देयर एड, बट इंडिया में कोई देख रहा है तो टाटा मोटर्स बोलेगा अरे अभी हमने CRI भी लॉन्च किए, इसका ऐड दिखाओ। अब मेरे पास पट्टी तो एक है ना उधर ग्राउंड में लगी हुई, मैं कैसे डायनेमिकली इंडिया के लोगों को सेम रियल टाइम लाइव गेम में जिसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इंडिया में सियरा दिखाऊंगा और चाइना में शेरी कैड दिखाऊंगा। ग्रीन स्क्रीन इज वन टेक्नोलॉजी, बट अब तुम सोचो फीफा मतलब फुटबॉल इज अ लो पेस गेम या हाई पेस गेम, है ना। अब उसमें मैं जी मीट या किसी ने कुछ बैकग्राउंड लगा के कॉल किया है कभी? ऐसा बैकग्राउंड लगाते हो आप ताकि पीछे का कुछ ना दिखे, आप ऐसे ऐसे हिलते हो तो ऐसा इधर 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 थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। आप सोचो मैंने फीफा के प्लेयर दौड़ रहे हैं, फिर वो ऐड ऐसे 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 जिब्रिश थोड़ा सा पिक्सेलेटेड दिखेगा, कोई स्पॉन्सर देगा पैसा उसके लिए? तो उन्होंने एक बढ़िया आइडिया किया। उन्होंने क्या किया, FPS पता है, अभी तो मोबाइल की वजह से सबको पता है, राइट? 30 FPS 60 FPS, व्हाट इज FPS फुल फॉर्म? फ्रेम पर सेकेंड, राइट? व्हाट इज ह्यूमन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फ्रेम? कितने FPS के नीचे अगर हुआ तो मैं ये तो जिफ की तरह लग रहा है, 24-25, राइट? इसलिए जो मूवी टेलीकास्ट होती है, जो रील वाली मूवी थी वो बनती थी 25-30 पे, अभी तो डिजिटल है तो जो गेम खेलते हैं वो 144 FPS पे होता है, राइट? ताकि एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस लगे, आपको लगे नहीं कि फ्रेम के बाद फ्रेम आ रही है। उन्होंने क्या किया, दे मेड दिस बिलबोर्ड ऑफ 240 FPS, ठीक है, जहाँ पे 240 FPS में चेंज हो रहा है मेरा हर फ्रेम, और इस कंट्री को बोला कि एवरी 4th इज योर्स, इंडिया को बोला से एवरी 3rd इज योर्स। तो वहाँ पे 240 में हो रहा है लेकिन मुझे 60 FPS पे कांस्टेंट फीड दिख रहा है, आई डोंट हैव टू डू एनी गेमिंग। अगर वैसा कुछ डेमो है तो यस, कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज देयर इज हाई ROI, पीपल रेडी टू पे फॉर इट। बट आप सिर्फ बोलोगे कि नहीं एक ऐसा 3D रोबोट आएगा आपको सर्व करेगा होटल में, जैसे हयात हैदराबाद आप जाओ वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए आपके पास रोबोट्स आते हैं अभी, ठीक है, उसके लिए अभी किसी के पास पैसा नहीं है, राइट? इंसान को भेज के आई कैन वेरी वेल डू दैट, क्योंकि रोबोट का स्पीड बहुत स्लो जाता है यार वो, राइट? ऐसे आ रहा है वो, नोबडी हैज टाइम टू वेट, तो उसके लिए पैसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाइप वर्सेस रियलिटी। नेक्स्ट, प्री AI वर्ल्ड कैसा था, ठीक है, ह्यूरिस्टिक्स थे, मुझे प्रैक्टिकल कुछ करके देखना है, या एक्सप्लिसिट रूल थे। इससे पहले जो सारी एप्लीकेशंस थी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, दे वर लाइक अ ब्रांच, सारे इफेल्स है कि अगर इफ द लोन अप्रूवल दैट हैज कम फॉर सैंक्शन इज मोर देन 5 crore, send it to say regional head. If they are less than 5 crore, give it to branch head. If they are even less than say 2 crore, give it to particular unit head. ऐसा सारा if else था, right? So those were only the rules world. Standard structural database querying, हर चीज़ का standard database। आप SQL सुना है, SQL PL SQL, right? वैसा वाला वर्ल्ड था। बट नाउ इन AI नेटिव एरा, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, मेरे पास एक लोन एप्लीकेशन आया है, वो बंदा कौन है, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसा है, सिबिल स्कोर क्या है, साइमल्टेनियसली मैं 1000 डेटा पॉइंट पे रन करके मेरी क्वेरी, आई कैन प्रोबेबिलिस्टिकली से देयर इज अ हाई चांस दैट दिस गाय विल रिपे माई लोन, सो आई अप्रूव इट, ठीक है। दिस इज AI नेटिव एरा, कंटिन्यूस लर्निंग। अगर मेरा मॉडल ये देखता है कि अच्छा ये लॉजिक लगा कि हमने 6 महीने में 10,000 लोगों को लोन दिया, ओनली 5,000 पीपल हैव रिपेड दैट लोन, 5,000 पीपल हैव, मेरा NPS हो गया, नॉन NPA हो गया, सॉरी,
तो वो अपडेट कर लेगा खुद का रूल खुद, किसी को जाके क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. एंड देन इट इज ऑल्सो गुड एट अनस्ट्रक्चर्ड सिमेंटिक डेटा प्रोसेसिंग. व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? चलो व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, अन को बाद में देखते हैं. व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा? टेबुलर फॉर्मेट में जो भी है स्ट्रक्चर्ड डेटा. व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रक्चर? Easy to interpret. I can query, right? The whole game of query is on tables. ठीक है. Select this column. If this column has this value up or less or उसका mean average जो भी है वो, you have some base to hold on to and then process, right? But unstructured data में ऐसा tabular form नहीं होता. तो कौन सा data है जिसमें unstructured है? आपका वीडियो, ऑडियो, राइट, लंबे लंबे टेक्स्ट जो आप बात करते हो वो, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, राइट. एंड समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन टुडे AI models are not good at figuring out sarcasm. बिकॉज अगर हम दोनों चैट कर रहे हैं, हम तीनों चैट कर रहे हैं, और इसने कुछ लिखा कि यार वो बहुत ही शाना है, बहुत शाना, डॉट डॉट डॉट, you have understood it, right? The moment I said with my tone, and we'll have context outside chat कि what I feel for this guy, you know that already. तो जैसे ही मैं कमेंट करूँगा, you will connect that dot and you will know what I want to say. बट ये AI के लिए फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है अभी, ठीक है. दे आर गोइंग टूवर्ड्स इट, बट अभी वो सार्केज्म झेल नहीं रहा वो ढंग से. एग्जीक्यूटिव रिलेशन क्या? टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर मेयर कॉस्ट सेंटर, इट इज फंडामेंटल गेम चेंजर थिंग फॉर एवरी स्ट्रेटेजी. आई एम डाइग्रेसिंग. ये विनफास्ट कंपनी का नाम सुना है किसी ने? अभी बड़ी न्यूज़ में क्या कर रहे हैं वो पता है? इलेक्ट्रिक कार्स, दैट इज देयर बिजनेस. बट व्हाट आर दे डूइंग वेरी स्पेशल इन इंडिया? टैक्सी. सो दे आर रनिंग 10,000 टैक्सीज इन इंडिया. उबर का कॉस्ट कितना होता है पर किलोमीटर? 25-30. सर्ज है तो थोड़ा और ज़्यादा. उनका फ्लैट रेट है 8 रुपीज़ पर किलोमीटर. प्लस दे आर नॉट हायरिंग द ड्राइवर्स ऑल्सो. हायरिंग ड्राइवर एज इन दे आर नॉट मार्केट प्लेस इन अ सेंस कि आपकी गाड़ी लेके आओ, उबर पे चढ़ाओ, ओला पे चढ़ाओ, वैसा नहीं करें. दे आर रिक्रूटिंग ड्राइवर्स. They are training them for what? Yeah, they are turning them into salespeople. They are training them to talk about features of their cars. So आप अभी सोचो, आप गाड़ी में बैठे हो, वो गाड़ी चालू कर, सर AC अच्छा लग रहा है ना कार का, सर गाने सुनने, हमारा इंटीग्रेशन ऐसे एप्पल म्यूजिक के साथ. आप बोलोगे यार ये बढ़िया फीचर है, कौन सी गाड़ी है ये? बस खत्म, राइट. दैट्स अ स्ट्रैटेजी, राइट. तो अलग स्ट्रैटेजी क्या है? AI आज उसके लिए यूज करना है मुझे. दिस इज नॉट AI का एग्जाम्पल, बट समथिंग दैट वाज नॉट एक्सप्लॉइटेड अर्लियर, आई वांट टू एक्सप्लॉइट दैट यूजिंग AI टुडे, ठीक है. आई थिंक अभी तक अपने इंडिया में वो पॉपुलर नहीं हो गया है. क्लिप ऑन ड्रेसेस वर्चुअली, बिफोर यू बाय यू सी हाउ यू लुक. अभी पॉपुलर हुआ है या नहीं है? हो गया है. एवरीबडी इज यूजिंग दैट, क्योंकि मैं अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ उसको. बट आई डोंट क्लेम दैट आई एम AI नेटिव. आप लोग यूज़ कर रहे हो? कितने लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया है? मॉल्स में यूज़ किया है? कौन से वाले? मुंबई में है. ओके, इंटरेस्टिंग. सो नाउ दैट इज अ गुड यूज ऑफ AI, राइट, विच इज नॉट येट मेन स्ट्रीम. वो जो करेगा वो मार्केट खा जाएगा, क्योंकि 3 ड्रेसेस पहनना फन है, 30 ड्रेसेस ट्राई करना इज नॉट फन. बराबर ना? या मजा आता है उसमें? नहीं, 30 ड्रेसेस इज नॉट फन. आई वांट टू सी यार ये कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा. तो वो है, ये कोई कर सकता है तो यस, बिजनेसेस आर रेडी टू पे फॉर इट. नेक्स्ट, AI ML DL क्या है ये? रशियन डॉल पता है आपको क्या होता है? पता सबको है, आपको सिर्फ पता नहीं उसको रशियन डॉल बोलते हैं. सो देयर इज वन डॉल, स्मॉल डॉल, इट इज पुट इन अ बिगर डॉल, देन दैट डॉल इज पुट इन अ बिगर डॉल. हाँ, नहीं तो वो इंस्टाग्राम पे आपके बर्थडे गिफ्ट, ये बक्सा ले, फिर उस बक्से के अंदर एक और बक्सा है. दोज आर एग्जाम्पल ऑफ रशियन डॉल्स, ठीक है.
तो ऐसा इमेजिन करो कि AI इज अ बिग डॉल, ठीक है। AI को खोलोगे तो उसके अंदर से निकलेगा मशीन लर्निंग, ठीक है। उसको खोलोगे तो उसके अंदर से निकलेगा डीप लर्निंग, ठीक है। कोई ये समझा सकता है, ये टेक्निकल है, जानने की जरूरत नहीं है, बस यू शुड अंडरस्टैंड द हायरार्की। AI, ML, DL। प्रॉब्ली एज मैनेजर यू विल नेवर हैव टू टच DL, कभी काम ही नहीं पड़ेगा तुमको। लेकिन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शायद आपको काम पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन मशीन लर्निंग यू वांट टू चेक सम हाइपोथेसिस कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपए से बढ़ाया तो हाउ इट विल परफॉर्म अगेंस्ट माई कॉम्पिटिशन। सो विल आइडेंटिफाई 5-10 वेरिएबल्स, उसके अगेंस्ट ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। देयर यू विल हैव टू टॉक टू इंजीनियर इन द लैंग्वेज ऑफ ML, क्योंकि आप उनको बिजनेस समझाने जाओगे तो उनको कुछ पल्ले नहीं बढ़ने वाला। सो यू हैव टू टॉक इन देयर लैंग्वेज। सिमुलेशन का आपको उनको एग्जैक्टली नाम बताना पड़ेगा, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ऐसे लैंग्वेज में बताना पड़ेगा सो दैट दे अंडरस्टैंड, एंड ओनली दे विल बी एबल टू काइंड ऑफ build that model and execute and get you the output of it. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटिव है या जनरेटिव है, क्या फर्क है पता है? डिस्क्रिमिनेटिव है इज वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब इट हैज टू फिगर आउट वेदर यू फिट इन दिस बॉक्स और दैट बॉक्स, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। क्या एग्जांपल है इसके? जीमेल कितने लोग जानते हैं? जीमेल में 2 टाइप का व्यू है, एक है इनबॉक्स व्यू, दूसरा है स्पैम व्यू। आपने खुद जाके मेल कितनी बार स्पैम में डाले हैं? ये मेल तो स्पैम है, स्पैम में डालो। कितनी बार किया है तुमने? खुद ने ऑटोमेटिक किया है। वो कैसे कर रहा है? तो वो जो आता मेल है उसको स्कैन कर रहा है, ये लेजिटिमेट मेल लग रहा है तो इसको मैं इनबॉक्स में डालता हूँ। ये लेजिटिमेट मेल नहीं लग रहा है तो इसको मैं इसमें डालता हूँ। क्या कर रहा है वो? इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग, राइट? सो दोज काइंड ऑफ मॉडल्स आर डिस्क्रिमिनेटिव है। वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आइडेंटिफाइंग बाउंड्री, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दे फॉल इनटू दिस। ये जो जेनरेटिव है, दिस इज व्हाट यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन। मुझे पोएम लिख के दे किया, ठीक है। तो वो वाला जो काम है, जनरेटिंग टेक्स्ट, जनरेटिंग इमेजेस, जनरेटिंग ऑडियो, जनरेटिंग वीडियो, ऑल दीज मॉडल्स आर जनरेटिव है। नाउ डिपेंडिंग ऑन लाइक आपको क्या आउटपुट चाहिए, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड विच मॉडल यू नीड राइट नाउ फॉर माई पर्पज, राइट? अच्छा, वी हैव टू क्लोज इन 5 minutes. डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस और डू यू हैव एनी क्वेश्चन दैट वी नीड टू आई नीड टू आंसर? क्या करें, आगे बढ़ें, सवाल जवाब खेलें? जय हिंद। Why arts students are beating technical students in AI in future? हाँ, ये मैंने क्यों बोला? गुड, ठीक है। 2+2 कितना होता है? हाँ, यही प्रॉब्लम है हमारा। तो AI में हम नहीं सक्सेड करेंगे। 2+2 7 करना है यार, कैसे करेंगे? When you pose this question, only then you will find ways to make 2+2 is equal to 7. क्योंकि हम इतना, अनफॉर्चुनेट दिस एजुकेशन सिस्टम इज सो डम, सॉरी, सो डम दैट इट टेक्स आउट क्यूरियोसिटी आउट ऑफ यू। यही का एग्जांपल है अपने, तुम्हारे कोई सीनियर होगा, मेरा कोई जूनियर था, बताओ ना, वो मेरा फेवरेट वाला है, वाह के लिए मैं आया था। दैट गर्ल डिड सम प्रोजेक्ट इन अमूल, ओके। तो उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रख के पटका। मैंने बोला इतना कहाँ पढ़ूंगा मैं 15 मिनट का, तो वाह अपना इसको छोड़ो, टेल मी वन थिंग दैट अमूल शुड डू टू ग्रो देयर बिजनेस। तो उसने बोला कि सर अमूल शुड लोअर देयर प्राइसेस। ओके, उससे क्या होगा? मार्केट शेयर बढ़ेगा, करेक्ट, कॉमन सेंस। अच्छा ठीक है, आई गेट इट। फिर मैंने और 2-4 सवाल पूछे, आई रिफ्रेज द क्वेश्चन कि उसका जवाब यही था, प्राइसेस कम करो, मार्केट शेयर बढ़ेगा। फिर मैंने पूछा कोई तीसरी चौथी बार, 5-6 बार मैंने पूछा, यही जवाब आ रहा है। फिर मैंने बोला दीदी सुनो, कल को अमूल दूध जो है वो फ्री में दे रहा है, 0 रुपये पर लीटर, क्या होगा? क्या होगा?
मार्केट शेयर बढ़ेगा, ऐसा उसका कहना था। मैंने वो कि दूध कैसे आता है आपके घर पे? वो कोई बच्चा आता है सुबह देखे जाता है, बच्चा या जो भी है, राइट? उसके पास कैसे आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है। उसके पास कैसे आ रहा है? डेयरी से आ रहा है। अब वो बच्चे को क्या मिलेगा अगर तुम्हारे घर में फ्री में दूध ला के देना है? वो तुम्हें लगता है 4 बजे उठेगा, नहा धो के आ रहा है तुम्हारे घर पे दूध देने, ये लो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बड़ा मजा आएगा? नहीं होगा ना। अगर ये आप समझ नहीं पा रहे हो, देन यू आर नॉट एबल टू यूज एआई। एआई इज गिविंग यू ट्रिमेंडस पावर, बट करोगे क्या आप उस पावर का अगर आपको पता ही नहीं है? जैसे ये हेनरी फोर्ड का कहना था ना कि पीपल आर डम इफ यू आस्क देम व्हाट यू नीड इन हेनरी फोर्ड इज द फाउंडर ऑफ फोर्ड कंपनी। तो उस जमाने की बात है। तो वो बोलता था कि लोग बोलेंगे मुझे फास्टर घोड़े दो, तगड़े घोड़े दो, कोई ये नहीं बोलेगा कि कार दो, क्योंकि किसी ने कार विजुअलाइज ही नहीं किए, राइट? देयर कैपेसिटी इज नॉट देयर टू सी कि देयर कुड बी अ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेविटेटिंग ट्रेन है चाइना की, हमने इमेजिन ही नहीं किया कि यार मैग्नेट से ऐसा ट्रेन उठ जाएगी और 600 की स्पीड में भागेगी। पॉसिबल ही नहीं है ना हमारे लिए सोचना। या स्पेस एक्स, रॉकेट का सबसे पार्ट होता है वो जो भेजता है रॉकेट को ऊपर आपके सैटेलाइट को। क्यों है? क्योंकि वो वापस ही नहीं आता, वो वन टाइम यूज है, ठीक है? ओटीपी की तरह एक बार रॉकेट उड़ा दियो खत्म। स्पेस में वो भाई क्यों खत्म, हम रीयूज करेंगे उसको। लोग बोले पागल है क्या, ऐसे रीयूज नहीं किया जा सकता। बट ही हैड गट टू चैलेंज इट, राइट? ओनली क्रिएटिव पीपल कैन चैलेंज इट एंड आर्ट मेक यू क्रिएटिव, राइट? क्योंकि जैसे वो शेर है ना, पहले तुम मेरे लिए दुनिया थी, अब तुम भी दुनिया बन गई हो। ये 2 लाइन है, तुमको पता चला, राइट? ये इंजीनियर लोगों को नहीं पता चलेगा, मेरे बैचमेट्स को नहीं पता चलेगा। ये बोले हाँ ठीक है फिर, ठीक है फिर भाई मैंने पूरी स्टोरी बता दी 2 लाइन में, राइट? दैट्स व्हाई आर्ट्स पीपल विल बी एबल टू चैनलाइज द पावर ऑफ एआई इन अ बेटर वे, क्योंकि उनको ना दुनियादारी की समझ थोड़ी कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आई कुड बी रॉन्ग, हाँ, बट ओके। I have met Shikhar Kapoor and I have met Raju Hirani during Goa Film Festival. अभी recent है इसलिए मैं बता रहा हूँ। Their understanding of AI is far better than I have seen the understanding of AI engineers. Okay, they don't have to sit and drive the AI car, as in they don't have to code. बट उन्हें पता है पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं AI को ऐसे यूज कर सकता हूँ, मैं AI को ऐसे यूज करता हूँ। उनका अंडरस्टैंडिंग इज अमेजिंग इन देयर फील्ड। So creative people will rock the world. Jai Hind, sir. I am Aditya Sharma. Sir, what is your perspective on which stage artificial intelligence currently now? Is it going to grow more drastically or? Okay. मैं comparative scale देता हूँ so that you understand it. अगर तुम्हारी लाइफ में AI के लाइफ से कंपेयर करूं, ठीक है, तो हम नॉर्मली 100 एज तक जिएंगे, ऐसा मान के चलते हैं ह्यूमन बीइंग। तो तुम ये समझो कि AI अभी नर्सरी में भी नहीं गया है, इतना बड़ा पोटेंशियल बाकी है। अब बच्चा है अभी, लिटरली जो धमाके तुम देख रहे हो वो उसके क्या, इट हैज नॉट इवन टच्ड हिज 5th ईयर इफ आई कंपेयर AI's लाइफ विद ह्यूमंस। बहुत पोटेंशियल है अभी, बहुत, इतना कि तुमको डरना चाहिए कि देयर बी नो नीड फॉर यू। यस, मिनी आपको ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर समझता है क्या होता है? वर्कर कैटेगरी, हाँ, जो ऐसा मजदूरी करेंगे। व्हाइट कॉलर क्या है? जो एसी में बैठते हैं, कंप्यूटर पे टुक टुक करते हैं। ऑल व्हाइट कॉलर जॉब्स आर इन डेंजर, राइट? इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस और नॉट, अभी इंटरनेट पे वो काफ़ी वायरल है कि लोग इधर ऐसा कैमरा लगा के कपड़ों की फोल्ड कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, राइट? वो क्या कर रहे हैं पता है? वो खुद की कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट सेशन में रेकमेंड किया था एक बुक, प्लीज डू रीड इट, स्केरी स्मार्ट। द नेम ऑफ द बुक इज स्केरी स्मार्ट। दिस इज अ बुक written by the business head of Google,
जो उनके मून शॉट प्रोजेक्ट लीड करता था उससे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट स्केरी स्मार्ट ढूंढोगे तो मिल जाएगा। उसका एक वाकया जो किताब में लिखा मुझे बहुत प्यारा लगा, एंड इट इज़ डेंजर एट द सेम टाइम, कि अगर आप एक कार लेके चले हो, सामने से कोई कार लेके आ रहा है और दोनों की टक्कर हो गई, ठीक है, तो दोनों को सब पता चलेगा यार ऐसे कार नहीं चलनी चाहिए, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ ड्राइविंग कार, राइट। तो कितने लोग होशियार हुए दुनिया में? 2 लोग, राइट, एक वो और एक आप। 2 एआई कार अगर भिड़ जाती है एक दूसरे से, तो कितनी कार इंटेलिजेंट होंगी पता है? सारे एक साथ। तो अगर आपने किसी एक रोबोट को सिखा दिया कपड़े कैसे फोल्ड करने हैं, दुनिया के सारे रोबोट सीख गए कपड़े कैसे फोल्ड करने हैं। और गहराई इस चीज से समझो, मेड कितने कितने लोगों के घर में आती है? बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, सबके घर आती है। अगर मैं आपको कोई रोबोट दूं 200 रुपये सब्सक्रिप्शन पे, जो छुट्टी नहीं मारेगा, क्वालिटी टॉप नॉच होगी, कितने लोग खरीदेंगे? मतलब सब्सक्रिप्शन लेंगे? ऑल ऑफ यू, राइट। तो आप जाते हो एचआर के पास, खड़े होते हो कि मुझे 50,000 की सैलरी चाहिए, उसके नीचे तो मैं काम ही नहीं करूँगा। और मैं जाता हूँ, ये बोलता हूँ ये मेरा एआई एजेंट है, इसको सिर्फ $20 लगेगा महीने का। तुम्हें क्या लगता है अच्छा मैनेजर क्या चूज करेगा, आपको या एआई एजेंट को? करेक्ट। तो ये ध्यान के मान के चलो कि तुमको इतना बेटर होना पड़ेगा कि वो मैनेजर एआई एजेंट को चूज ना करे, एंड इट्स नॉट इजी, ठीक है। अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है, होना चाहिए, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट एआई कैन नॉट डू। आई विल नॉट लीव यू ऑन अ वेरी ड्राई पॉइंट। एआई ह्यूमन, अच्छा एक सवाल पूछ लो भाई तुम, फिर ये करते हैं, विल कंक्लूड। ऑलरेडी आई हैव टेकन 5 मिनट। थैंक यू मैडम, आई सी द इम्प्रूवमेंट। Jai Hind, sir. यस। My name is Rohan. So I am now a novice at AI. हाँ हाँ, So can you give me a small roadmap as to learn AI and adopt it in my career as well? ओके। A very small roadmap, very in. मेरा, मैं जो भी रोड मैप दूंगा वो होगा ना, तुम ऐसा सोचो मैं बताऊंगा तुमको चलना कैसे और डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है, और यू आर ऑलरेडी ड्राइविंग अ कार। सो मेरी जो भी एडवाइस होगी वो अगले 2-3 महीने में ऑब्सोलीट हो जाने वाली है, मैं कुछ भी बताऊं, बिकॉज द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एआई इज सो फास्ट and so beyond even my imagination that I'll not be able to tell you wisely, but what I can recommend you is रोज पढ़ते रहो एआई के बारे में कुछ ना कुछ, क्योंकि अरे यार मैं तो मतलब परेशान हो गया हूँ पिछले 1 साल से, लिटरली इट्स अ रेस। आज क्वेन आगे है, कल कोई डीपसिक का मॉडल आगे है, परसों कोई और एक मून शॉट का कोई और एक मॉडल आगे हो गया, कोई मिनमैक्स का मॉडल आगे। एवरी डे दिस इज चेंजिंग, every single day, right? So you should use off the shelf very sophisticated model that are there, जो कि हम certain dollar पे खरीद सकते हैं। You should also test local models। अब वो ओलामा यूज़ कर लो या कुछ भी यूज़ कर लो to test it, but use local models also, because nowadays people are saying you don't need big models for all the things. So if you can devise a strategy कि मैं architecting या planning में बड़े मॉडल से कर लूँगा, then I'll divide that particular task into 100 things, और फिर वो मैं लोकली छोटे छोटे मॉडल से रन कर लूँगा। एंड इन दैट प्रोसेस इफ़ यू आर सेविंग मनी, मतलब तुम बस इतना डाल दो अपना गिटअप पे कुछ तो बना के, कंपनी में कम यू एंड पिक यू, जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, ठीक है। हाँ, सो आई सेड लेट मी गिव यू अ गुड न्यूज़। एआई क्या नहीं कर सकता? एआई ह्यूमन नहीं हो सकता, ह्यूमन आपको ही होना पड़ेगा, और इसके लिए अपने पीपल स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज मैं आई एम फॉरगेटिंग विच यूनिवर्सिटी डिड दिस स्टडी। सो उन्होंने एक कोई तो टाउन चुना जहाँ पे रोइंग कंपटीशन होती थी, रोइंग कंपटीशन, परम सुंदरी मूवी देखिए, हाँ वो जो वाला कंपटीशन है वही वैसा वाला। तो उन्होंने नोटिस किया एक टीम हमेशा जीतती है और एक टीम हमेशा हारती है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा 10वां नंबर चेंज होते रहते हैं। So what they did is they took a captain of winning team and they took a captain of losing team and they exchanged them, ठीक है। तो 2-3 मैचेस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, बट आफ्टर 3rd or 4th मैच they consistently saw the losing team was winning and the winning team was losing,
Nothing else was changed. Only the captains. That is power of a person being there. ठीक है?